After gathering information, audit team is prepared. Audit team is prepared. The audit team includes people from production, quality control. The audit team includes people from production, quality control, research and development, technical staff, etc. Total number of team members can be between 4 to 8. फोर टू 8 लोगों की ऑडिट टीम होती है. After formation of audit team, the resources are checked based on the information given by the industry. The resources are checked based on the information given by industry. That is, what type of tests have to be performed. What type of tests have to be performed on the effluent samples. Whether the testing facility is available in the industry or will have to be done outside the industry. It is important that audit team members are aware of the regulatory framework. It is important that the audit team members are aware of the regulatory framework and can perform the testing.
Next, in the pre-audit activities, the date and time of visit is decided. The date and time of visit is decided with the consent of industry. With the consent of industry. Different jobs are allocated. Different jobs are allocated to different audit team members. Different jobs are allocated to different audit team members. हर मेंबर को उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग काम दे दिया जाता है कि जब जाएंगे इंडस्ट्री में ऑन साइट किसको क्या करना है. Who will collect the samples, who will test the samples, who will look at the testing technique, who will talk to people. So all this is decided. ये पूरा हो गया प्री ऑडिट एक्टिविटीज का. नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ऑडिट. Activities during the audit. अब मेन इसमें एक्टिविटीज ड्यूरिंग दी ऑडिट होता है क्योंकि वो सेवरल डेज तक चलता है, वीक्स में भी चलता है और इसमें वही सारा कुछ किया जाता है. इंटरव्यू भी किया जाता है स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ, वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सेट्रा. और टेस्टिंग भी करते हैं, सैंपल भी कलेक्शन करते हैं, रिपोर्ट भी बनाते हैं, कंक्लूजन भी बनाते हैं. सो दिस इज ओवर सेवरल डेज और मे बी इवन सेवरल वीक्स, डिपेंड्स ऑन द how big or small is the industry. If it is a big industry, it may take several weeks, and if it is a small industry, just a few days. So even a small textile industry like the one we had visited, your first batch students had gone to a textile industry, and in between came their audit, which ran for I think almost 20-25 days. So it depends on the the size of the industry. अब एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑडिट में लिखिए ऑडिट टीम मेंबर्स इंटरव्यू. ऑडिट टीम मेंबर्स इंटरव्यू industry staff at different levels.
audit team members interview industry staff at different levels, that is administrative level, technical level, administrative level, technical level, workers, and at the executive level. The first activity is to check the information given by the industry. The first activity is to check the information given by the industry. Then physical examination of all unit processes. Physical examination of all unit processes is done. Physical examination of all unit processes is done. Next is the preparation of material balance sheets. Next is the preparation of material balance sheets. This includes water balance also. This includes water balance also. So material balance sheets and then water balance sheets. ये दो होती है कि मतलब मटेरियल बैलेंस का मतलब रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस यूनिट प्रोसेस में कितना जा रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, कितना वेस्ट निकल रहा है, सबका क्वांटिटी में, मतलब डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने किलोग्राम इनपुट है रॉ मटेरियल का, कितने किलोग्राम आउटपुट है और कितना बाई प्रोडक्ट है और वेस्ट जो है कितना निकल रहा है. From the balance sheet, the appropriate audit team members, from the balance sheet, the appropriate audit team members calculate the efficiency of the unit processes. Calculate the efficiency of the unit processes.
Then they decide from where to collect the samples. Then they decide from where to collect the samples and which unit processes need more attention. And which unit processes need more attention. तो जो मास बैलेंस वाला जो प्रिपेयर करते हैं उसके बेसिस पे यूनिट प्रोसेसेस का जो मास बैलेंस वाला होता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पॉसिबली प्रॉब्लम है और किस यूनिट प्रोसेस से आगे पीछे मतलब इनपुट आउटपुट के समय ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी जगह से सैंपल कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है और फिर उसके बेसिस पे लास्ट में रिकमेंडेशन देना है. After mass balance, water balance sheets are prepared. After mass balance, water balance sheets are prepared. वाटर बैलेंस शीट में देखते हैं कि कहाँ पे किस यूनिट प्रोसेस में कितना वाटर इनपुट हो रहा है, उसमें कितना कंजम्पशन हुआ और फिर वेस्ट वाटर कितना जनरेट हो रहा है और उस वेस्ट वाटर में क्या क्या चीज जा रही है और वो कितना वाटर जो है वो यूज हुआ, कितना एक्चुअल में इन्होंने लिया, क्योंकि जितना लिया वो वाटर रिसोर्स से उतना उठाया और फिर उसमें से यूज किया और जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसमें किस टाइप का वेस्ट मटेरियल उसके साथ में बाहर जा रहा है और फिर उसका कैसे और कितना ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो मास बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, उसके बाद में वाटर बैलेंस की शीट प्रिपेयर किया. वाटर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद में फिर वेस्ट का फ्लो, अब उसको इन जनरल वेस्ट फ्लो कह रहे हैं क्योंकि उसमें सॉलिड वेस्ट का भी फ्लो और लिक्विड वेस्ट का भी फ्लो, दोनों चीजों का देखेंगे कि कितना निकल रहा है और उसका कितना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं. तो अभी इसी में ऑन साइट एक्टिविटीज में ही लिखना है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग मास बैलेंस या मटेरियल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग मटेरियल बैलेंस, वाटर बैलेंस sheets, waste flow diagram is prepared. Waste flow diagram is prepared. This gives an idea of
This gives an idea of contents in waste. This gives an idea of content in waste, leakages, amount of waste discharge, amount of waste discharge, discharge points, and places of likely rectification, and places of likely rectification. वेस्ट फ्लो डायग्राम से पता लग जाता है कि प्रोबेबली कहाँ कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब वेस्ट निकल कहाँ कहाँ से रहा है और कितना निकल रहा है, उसमें कोई लीकेज है कि नहीं। लीकेज इस टाइप का कि जैसे एक तो जैसे एक्सेस में इंग्रेडिएंट्स या वही रॉ मटेरियल एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पूरा यूज़ होगा नहीं रिएक्शन में, और फिर कुछ जो है वो डिस्चार्ज में जाएगा। तो वहाँ से जब डिस्चार्ज का सैंपल जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ से पता लग जाता है कि इसमें जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है डिस्चार्ज में, कहीं से स्पिल होके आ रहा है या फिर जो है कुछ प्रॉब्लम है। ये चीज़ें जो है वेस्ट फ्लो डायग्राम से पता लग जाती हैं। और कहाँ पे लाइकली रेक्टिफिकेशन का मतलब है वेस्ट फ्लो प्रोसेस से, वेस्ट फ्लो प्रोसेस डायग्राम से पता लग जाता है कि प्रोबेबली किन यूनिट प्रोसेसेस में दिक्कत शायद है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग उन यूनिट प्रोसेसेस में जहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि जहाँ पे ज़्यादा लाइकलीहुड है प्रॉब्लम का, फिर वहाँ से ज़्यादा सैंपल जो है उठाते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप इन ऑन साइट एक्टिविटीज़, next step in on-site activities is to take the samples from marked places for monitoring and to suggest better implementation of recycling and recovery, Now, these are on-site activities. Okay.
इसमें लिखा है इसीलिए रहे कि पीपीटी में तो बहुत सारे बीच में जो है बीच में सारे वो आ गए हैं, वेस्ट फ्लो डायग्राम, मटेरियल बैलेंस शीट, वाटर बैलेंस शीट एटसेट्रा। हाँ, अब फिर लिख लो कि नेक्स्ट इन ऑन साइट visit, next in the on-site visit, interviews are done. Interviews are done along with the visit, to different unit operations. Along with the visit to different unit operations. During the visit, audit team concentrates on safety regulations, how the operators handle the raw materials, whether hazard signs have been displayed, whether hazard signs have been displayed where required. मतलब जहाँ कहीं जैसे कहीं रेडिएशन है तो वहाँ पे जो है साइन लगा होना चाहिए कि यहाँ पे रेडिएशन का हैजर्ड है, या कहीं पे जो है वो कोई हैजार्डस मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी साइन लगा होना चाहिए कि इधर मत जाइए, इधर हैजार्डस मटेरियल है, व्हाटएवर। सो दे सी की सारे यूनिट प्रोसेस में जहाँ पे इन चीज़ों की हैंडलिंग कर रहे हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ग्लव्स और ये सब सेफ्टी के लिए, और साइंस डिस्प्लेड किए हुए हैं कि नहीं. So they check whether they check on the safety issues and whether handling of raw materials and waste and display of these hazard signs has been done properly. The color coding should be followed while collecting different types of hazardous waste. Color coding should be followed while collecting different types of hazardous waste. The attitude of management
towards the safety of its employees, the attitude of management towards the safety of its employees is very carefully observed by the team members. Is very carefully observed by the team members. This gives an assessment of training schedule required. This gives an assessment of training schedule required. इसके बाद में जस्ट जो है एनालिसिस होती है, फिर लिखो दिस इज फॉलोड बाय, यही सबसे मेजर वाला पार्ट है ऑडिट का, ऑन साइट एक्टिविटीज वाला. आफ्टर असेसमेंट ऑफ different flow sheets, after assessment of different flow sheets and after samples have been taken, the analysis is done by the experts in the team. The analysis is done by the experts in the team. सैंपल सबको अलग अलग टास्क असाइंड होता है. कुछ लोग सैंपल उठाने का काम करते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू का काम करते हैं, और फिर जो टेक्निकल ट्रेंड वाले होते हैं वो अब इसकी एनालिसिस का काम करते हैं. So analysis is done by the team members who are expert in analysis. Finally, based on the analysis, a report is drafted. A report is drafted and discussed with the industry management. A report is drafted and discussed with the industry management. Recommendations to improve recovery and reuse of waste. Recommendations to improve recovery and reuse of waste are presented to the management for compliance.
ये पूरा हो गया ऑन साइट एक्टिविटीज. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ ऑडिट, थर्ड हेडिंग, पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज. Post audit activities. The post audit activities include explaining the industry technical people, the post audit activities include explaining the industry technical people how to enhance recovery, and best practices for reuse of waste, best practices for reuse of waste. A time frame is given. A time frame is given for implementation of recommendations. A time frame is given for implementation of recommendations. The audit team then follows up on the compliance. The audit team then follows up on the compliance. ठीक है, ये तो जो ऑडिट प्रोसीजर के बारे में जो लिखवाना था वो हो गया. अब जो ऑडिट केस हिस्ट्री वाला जो पीपीटी है उसको खोलो, 5 मिनट में थोड़ा सा दिखा देते हैं. ये एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की केस हिस्ट्री का है जिसमें कि ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद क्लोरीन जो पेस्टिसाइड का काम करता है. जैसे कि डीडीटी जो आपको मालूम है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक फेमस पेस्टिसाइड है डीडीटी, जो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ करते थे और काफ़ी टॉक्सिक होता है. इसलिए अब जो है बेटर वाले आ गए हैं, बेटर पेस्टिसाइड्स आर देयर. और जो है वो मॉडर्न टाइम्स में अब जो है नेचुरल
कंपाउंड्स लाइक सिनेरिन्स वगैरह यूज़ करते हैं और बेटर पायरेथ्रिन कंपाउंड्स वगैरह यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड के लिए, क्योंकि वो लेस हार्मफुल होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। लेकिन ये एक बहुत पुरानी ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स एज पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री है और उसके ऑडिट की केस हिस्ट्री है। इसमें जो एनवायरमेंटल ऑडिट केस हिस्ट्री वाला जो पीपीटी है, उसमें फर्स्ट स्लाइड में ये उसी में से लिया हुआ है, बड़े वाले पीपीटी में से, पर इसमें खाली सिलेक्टेड चीज़ें हैं केस हिस्ट्री से रिलेटेड जो बतानी है। तो फर्स्ट स्लाइड में तो खाली वही है, ये फ्लो चार्ट है ऑडिट एक्टिविटीज़ का, जो ऑलरेडी बता चुके, लिखवा चुके हैं। सेकंड स्लाइड वाला भी बता चुके हैं, जिसमें किसी यूनिट प्रोसेस को इंडस्ट्री के उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, हर यूनिट प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट, और कुछ रिसाइकिल अगर कर रहे हैं, क्या वेस्ट निकल रहा है, सॉलिड लिक्विड गैसियस वेस्ट, सब उसमें फ्लो चार्ट में शो करते हैं। तो वो यूनिट पर्टिकुलर यूनिट प्रोसेस या जिसको प्लांट प्रोसेस कहेंगे, उसका पूरा कंडेंस्ड एक फ्लो चार्ट टाइप होता है, जिससे पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट प्रोसेस में या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के यूनिट प्रोसेस में क्या काम हो रहा है। क्योंकि एक ही यूनिट प्रोसेस में तो किसी इंडस्ट्री का होता नहीं है, 7, 8, 9 डिफरेंट टाइप के यूनिट प्रोसेस होते हैं। एक यूनिट प्रोसेस से जो बनता है वो फिर सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, एंड सो ऑन, जब तक कि फाइनल उनका प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो किसी यूनिट प्रोसेस में बेसिकली इतना इंफॉर्मेशन ये मैंडेटरी होता है कि इनपुट रॉ मटेरियल क्या है, आउटपुट मेन प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, और फिर वेस्ट सॉलिड लिक्विड गैसियस क्या निकल रहा है, एंड इफ एनीथिंग इज बीइंग रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, अदरवाइज जो भी वेस्ट निकल रहा है वो मतलब कहाँ पे ले जा रहे हैं। और फिर इस यूनिट प्रोसेस की क्या स्टोइकियोमेट्री है और कितना कितना अमाउंट इसमें यूज करें। एनीवे, अब उसके नीचे एक जो है इस ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का भी नहीं, एक जनरल दिया है कि मास बैलेंस वाटर के लिए, वाटर के कंजम्पशन के लिए, ये एक्चुअली वाटर बैलेंस वाली शीट कुछ किस तरीके से दिखती है उसका आइडिया दिया हुआ है ये थर्ड स्लाइड में। इसमें जैसे ऊपर देख सकते हो तो दिया रॉ वाटर, मतलब टोटल जो है, जो पानी ले रहे हैं वो किस रिसोर्स से ले रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, उसको मेन 3 टाइप्स के उसमें इनपुट वाटर में डिवाइड किया है। एक जो यूनिट प्रोसेसेस में जो यूज हो रहा है उसको प्रोसेस वाटर कह रहे हैं, एक सर्विस वाटर कह रहे हैं। सर्विस वाटर का मतलब है कि जो जैसे एसी प्लांट में यूज हो रहा है, या धुलाई करने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, और उसमें बीच में लिखा है MISC, मतलब मिसलेनियस, जो भी जिस भी काम के लिए, मतलब अदर देन यूनिट प्रोसेसेस जिस काम के लिए यूज हो रहा है वो यहाँ पे लिस्ट होगा। जैसे वॉशिंग के लिए, मिसलेनियस कामों के लिए, और ये फायर हैजर्ड के लिए, मतलब फायर के लिए जो प्रिपरेशन रहती है उसके लिए भी, जो आग बुझाने वाले उनमें इक्विपमेंट्स में जितना पानी भर के रखते हैं वो, तो ये सब जो है सर्विस वाटर में आता है। प्रोसेस वाटर का मतलब है जो जितना बल्क में वाटर जो उनके इंडस्ट्री के यूनिट प्रोसेसेस में, डिफरेंट यूनिट प्रोसेसेस में यूज हो रहा है, वो पूरा कलेक्टिवली प्रोसेस वाटर कहलाएगा। पूरी इंडस्ट्री में अदर चीज़ों के लिए, जैसे गार्डन के लिए, धुलाई के लिए, और जो है वो फायर हैजर्ड अवॉइड करने के लिए, या जहाँ जहाँ भी जिस भी चीज़ में, जैसे कोई
फाउंटेन्स लगे हैं उसके लिए, वॉटेवर जिसके लिए भी वाटर यूज हो रहा है वो सर्विस वाटर कहलाएगा। और लास्टली पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग के लिए पर डे कितना वाटर यूज हो रहा है, और जहाँ पे भी ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है उसमें भी कुछ भी जो भी अगर वेस्टेज हो रहा है तो वो कितना जा रहा है, मतलब वेस्टेज मतलब टंकी से ओवरफ्लो में अगर कुछ जा रहा है, या फिर पीने के पानी के लिए जहाँ पे नल लगे हुए हैं वहाँ से कुछ गिर रहा है, या हाथ धोया मुंह धोया उससे जो निकल रहा है वॉटेवर। पोर्टेबल वाटर का भी जो वेस्ट जो जा रहा है वो भी ये वेस्ट वाटर वाला नीचे कलेक्टिवली कहाँ कहाँ से वेस्ट आ रहा है, उसमें क्या क्या वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाटर बैलेंस की शीट बनती है। अब इन तीन मेन कैटेगरी में प्रोसेस वाटर में जैसे देख सकते हो वो एल है, लॉस इन इवेपोरेशन एंड विंडेज लॉस, मतलब कि विंड की वजह से कितना उड़ जा रहा है, या गर्मी की वजह से जो इवेपोरेट हो रहा है उसमें जो वेस्टेज हो रहा है, रफली कितना वेस्टेज हो रहा है। फिर कूलिंग टावर में कितना जा रहा है, मतलब जिस भी यूनिट प्रोसेस के लिए अगर कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो कूलिंग टावर से जाएगा। डीएम प्लांट, डीएम का मतलब डीमिनरलाइजेशन प्लांट, मतलब जिसमें कि सॉफ्टन कर रहे हैं वाटर को, उसमें कितना इनपुट जा रहा है। और फिर थर्ड इंडस्ट्रियल यूज में मतलब एक्चुअल में वही यूनिट प्रोसेस में कितना जा रहा है। तो मतलब डिपेंड करता है, कुछ यूनिट प्रोसेस में आफ्टर डीमिनरलाइजेशन यूज करते होंगे और कुछ में सीधा यूज करते होंगे। फिर डीमिनरलाइज करके, अब देखो ये जैसे मैंने पढ़ाया है बॉयलर में हमेशा सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, तो ये आप देख रहे हो, इसीलिए इसमें प्रोसेस वाटर को पहले डीएम प्लांट में ले गए, वहां से बॉयलर में ले गए, मतलब सीधा बॉयलर में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हार्ड वाटर बॉयलर में नहीं यूज करते हैं, नहीं तो बॉयलर में सेफ्टी इशू होएगा, इसलिए उसको प्रोसेस वाटर को पहले डीमिनरलाइजेशन प्लांट में ले गए, वहां से फिर बॉयलर में ले गए हैं, और फिर बॉयलर से जो कुछ वेस्ट निकल रहा है वो नीचे लाइन खींची हुई है, उस पे वेस्ट वाटर लिखा हुआ है, मतलब सब जगह से कलेक्टिवली कितना वेस्ट निकल रहा है। और ये वाटर बैलेंस शीट है, मतलब ऊपर रॉ वाटर भी पूरा टोटल कलेक्टिवली रॉ वाटर पर डे जितने भी गैलन्स यूज हो रहा है उसको ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, नीचे ऐसे ही वेस्ट वाटर, हर जगह का वेस्ट वाटर कलेक्टिवली कितना वेस्ट वाटर निकल रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर बैलेंस शीट से पता लग जाएगा कि पर डे इंडस्ट्री में कितने गैलन वाटर यूज हो रहा है डिफरेंट चीज़ों के लिए, और नीचे से पता लग जाएगा कि टोटल उसने इनपुट गैलन्स ऑफ वाटर में से कितना जो है वो एक्चुअली वेस्ट वाटर में जा रहा है। तो एक्चुअल में कितना यूज हुआ, जैसे सपोज 50 लीटर्स जो कि बहुत कम है, मान लो 50 लीटर्स टोटल रॉ वाटर था और उसमें से 15-20 जो है ये वेस्ट वाटर में जा रहा है, तो एक्चुअल में यूसेज जो है वो 30 हुआ। तो उस तरीके से ये वाटर बैलेंस की शीट है। ऐसे ही फिर और चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं, डीएम प्लांट से बॉयलर में, बॉयलर से फिर कुछ हिस्सा वेस्ट में, इंडस्ट्रियल यूज में भी फिर बॉयलर में भी जाता है, कंडेंसे बॉयलर से कंडेंसेशन में जाता है, मतलब इस तरीके से ये वहाँ पे एक साइकिल भी बनाया हुआ है कि इंडस्ट्री में यूज करने के लिए पहले डीमिनरलाइज किया, फिर बॉयलर में गया, फिर बॉयलर से फिर वापस उसको कूल किया, कंडेंसेट किया, और फिर इंडस्ट्री में यूज किया, फिर तो इस तरीके से ऐसे साइकिल में चलता रहता है। और इंडस्ट्रियल यूज वाले से भी कुछ वेस्ट में जा रहा है, बॉयलर से भी कुछ वेस्ट में जा रहा है, डीमिनरलाइजेशन प्लांट से भी कुछ वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि वेस्टेज तो हर ही जगह होता है कुछ ना कुछ, तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा जो है वो वेस्ट में भी जा रहा है। सर्विस वाटर ये तीनों जगह वॉशिंग, मिसलेनियस और ये, और इनमें जो है आपस में रिसाइकलिंग भी चल रहा है, लेकिन फिर कुछ जो है ये नीचे वेस्ट में भी जा रहा है। ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर है, जितना भी अमाउंट है
और ड्रिंकिंग वाटर से भी फिर एंड में थोड़ा सा वेस्ट में जा रहा है। तो कलेक्टिवली ये वाटर बैलेंस शीट अगेन वही चीज बताती है कि टोटल रॉ वाटर पर डे कितना इंडस्ट्री यूज कर रही है और उसमें से कितना वेस्ट जा रहा है और वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं और एक्चुअल में यूसेज जो है वो कितना है। तो पर डे वेस्ट वाटर जनरेशन कितना है, यूसेज कितना है और किस वाटर रिसोर्स से ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे इसमें जो है ये ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का है, जिसमें कि ये डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, बहुत ब्रीफ में बताएंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में केस हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये वाली ये ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड वाली डिस्कस कर लेंगे, मे बी एक और डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद खाली वही लास्ट चीज जो कि ये मेथडोलॉजीज ऑफ EIA है, जिसमें बेसलाइन डेटा कलेक्शन है, क्योंकि मेथडोलॉजी की बाकी चीजें EIA रिपोर्ट, EIS वगैरह करा चुके हैं। EMP वाला एक हम अभी जो है क्लासरूम पे पोस्ट करेंगे, जिसमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लान का एक पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट है, जिससे कि कुछ आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली कितना एग्जॉस्टिव होती हैं। तो जस्ट वो एक मतलब उसमें याद भी नहीं करना है, कुछ नहीं है, वो भी अगेन एक टाइप ऑफ केस हिस्ट्री की तरह एक पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट की EMP की मॉनिटरिंग का जो प्लान है उसको हम जो है उस पे क्लासरूम पे चढ़ा देंगे। तो उसको जस्ट खोल के ब्राउज करके देख सकते हो, फिर उसको भी क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चाहे मेथडोलॉजी कराने के पहले या चाहे बाद में। और केस हिस्ट्री देख लेंगे हम वापस उस पे क्लासरूम पे, कौन कौन सी केस हिस्ट्री मैंने उसमें डाली थी। आई थिंक केरल वाली अभी नहीं डाली थी,